Namaskar, and a very warm welcome to all of you in this episode. Nowadays, we are witnessing some very drastic change in the weather. It becomes very cold all of a sudden and then becomes very hot all of a sudden, and that gradual change which used to take place between seasons has really gone down. You would have seen that the last few days, if I talk of India and particularly the state in which we live, is that one day it is quite cold, and the next day the temperature goes up by around 6 degrees Celsius. The changes are very, very extreme and very fast. And when I was thinking about it, then I realized that the same might be happening with our thoughts also, our feelings also, our reactions also. Like when I talk of human beings, then sometimes we are very happy, and immediately after some time of that we are sad. We become very, very excited and happy for certain things which happen as per our choice, and we become angry and sad if the things are not of our choice. So these things do impact our children, and anything which happens for the good is, of course, very, very helpful to our kids. But something which does not happen that way, I mean, it harms our children, and they're the biggest victim of anything which is not happening good around. And we all know it very well that our children get influenced, they get affected by the things which happen in the society. And the things which are happening in the society in today's time is that you would have really come across that road rage is there. I mean, people start fighting with somebody else for no reason sometimes, and it takes a very, very bad shape ultimately. And the children who are around, either they are witness to such situations or they are reading or watching it on television or somewhere else, they really feel bad about it, and they tend to at times react or imbibe those things which may not be really very good for them later in their life, and even now when they're children. So that becomes an issue. So as a teacher, as a parent, I always felt like that our children deserve to be treated and exposed to the things which will make them better person, which will bring out the best out of their personality or whatever they have. क्योंकि विवेकानंद जी ने तो कहा था कि एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द पोटेंशियल वन पजेसेस। तो जो हमारे बच्चे के अंदर जो बेस्ट पॉसिबल चीज़ें हैं वो ऑलरेडी हैं, और उनको सिर्फ एक एजुकेशन के थ्रू हम एक्सपोजर दे करके उनको बाहर निकालना है। तो जब मैं आपसे ये बातें कर रहा हूँ तो मेरे जहन में दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट आ रही हैं कि अगर हमें अपने बच्चों को बेटर ह्यूमन बीइंग बनाना है, बेटर एनवायरनमेंट देकर के उनको आगे ले जाना है, तो उसके लिए दो चीज़ें करना हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। वन इज मेकिंग देम एम्पैथेटिक, मतलब उनके अंदर एम्पैथी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही अच्छा। दूसरा, मेकिंग देम अवेयर ऑफ इमोशंस एंड देन हाउ टू रेगुलेट द इमोशंस। ये दो चीज़ें अगर हम अपने बच्चों के साथ कर पाएंगे तो चाहे जितनी सामाजिक बाकी परिस्थितियां कैसी भी हों, उनमें किसी तरह की भी सिचुएशन हो, आवर चिल्ड्रन वुड बी एबल टू सेल थ्रू ऑल द सिचुएशंस। उनको कोई तकलीफ वाली स्थिति होगी वो उसको भी पार कर लेंगे, और खुशी में तो खैर उनको तकलीफ होगी ही नहीं। तो जब मैं एम्पैथी की बात करता हूँ तो एम्पैथी को डिफाइन किया गया है एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयर अनदर पर्सन्स फीलिंग्स एज इफ यू वर एक्सपीरियंसिंग देम योरसेल्फ। मतलब बीइंग इन द शूज ऑफ समबडी एल्स। जब किसी को चोट लगे तो वो हम ऐसा लगे कि वो चोट हमें लगी है। हम सिर्फ ये ना कहें अरे आपके साथ ये गलत हुआ, हम फील करें उस चीज़ को। आप देखिए कि जब आप कोई फिल्म देख रहे होते हैं या कोई सीरियल देख रहे होते हैं या कई बार कोई न्यूज़ आप पढ़ रहे होते हैं तो आप खुद बड़े उदास हो जाते हैं, आपके आंखों में आंसू आ जाते हैं कोई इस तरह की ट्रेजिक सिचुएशन देख करके, या कहीं पे बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, किसी ने किसी के लिए बहुत अच्छा कुछ किया है, यू बिकम वेरी हैप्पी। सो यू आर एसोसिएटिंग योर सेल्फ और यू आर एक्सपीरियंसिंग दैट पर्टिकुलर फीलिंग एज इट वॉज हैपनिंग विद यू। और जब भी आपके मन में ये बात आए कि वट एवर समबडी एल्स इज गोइंग थ्रू, आई मीन एज यू वर गोइंग थ्रू द सेम सिचुएशन, इसको हम बोलेंगे एम्पैथी।
तो बहुत एक अनदर वर्ड विच वाज सो ऑफन यूज्ड बिफोर एम्पैथी वर्ड बिकेम so much important for all of us was sympathy. Now, what is sympathy? Now, sympathy is just to understand or recognize someone else's emotions that we understand, but we don't share them. हाँ, किसी को चोट लगी है, किसी को ये हुआ है, खुशी हुई है किसी चीज की, हमने कह दिया वो खुश है या उसको थोड़ा दुख हुआ है, बट वी डोंट फील एग्जैक्टली द सेम एज दैट पर्सन वुड बी फीलिंग दैट टाइम. तो ये आ जाता है सिंपैथी में. और ये तक कहा गया है कि बीइंग सिंपैथेटिक टुवर्ड्स समबडी मे नॉट बी ग्रेट, रादर being empathetic would make things absolutely great for the other person who is passing through some very difficult time, or maybe very good time, happy time and all that, both the situations. तो अगर मान लीजिए किसी के घर में कुछ अच्छा हुआ एंड वी गो एंड आई फील वेरी हैप्पी, सो वी आर एंकरेजिंग और वी आर मल्टीप्लाइंग द हैप्पीनेस ऑफ दैट पर्सन. लेकिन जब हम किसी को कोई तकलीफ होती है एंड वी फील दैट वे, हम जाकर के उनके पास बैठते हैं, उनको सुनते हैं और कहते हैं कि हाँ मैं समझ सकता हूँ या समझ सकती हूँ कि आप किस सिचुएशन के तरह, आपको कितना दुख होगा, बट मुझे भी ये कभी हुआ था एंड आई केम आउट ऑफ दैट सिचुएशन. तो आपने उनके साथ सिंपैथाइज भी कर लिया, आपने उनके साथ एम्पैथाइज भी कर लिया और आप उनको उस सिचुएशन से बाहर भी निकाल पा रहे हैं. तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने बच्चों को सिखाएं एम्पैथेटिक होना. हम अपने बच्चों को ये सिखाएं कि किसी आपके दोस्त को, आपके साथी को क्लासरूम में या कहीं पर और थोड़ी भी दुख होता है, कोई थोड़ी भी चोट लगती है, तो आपको बुरा लगना चाहिए. आपको नहीं मतलब यू शुड बी इंडिफरेंट ऑफ समबडीज एल्स सफरिंग्स. अगर हम अपने बच्चों को ये सिखा पाएंगे तो हम उनके लिए एक अच्छा काम कर पाएंगे. दूसरा जो मैंने आपसे बात की वो की थी इमोशंस की. नाउ इमोशंस आर बेसिकली द फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज टू द सिचुएशंस, टू द थॉट्स विच वी कम अक्रॉस और एक्सपीरियंसेस. तो जो भी चीज हम एक्सपीरियंस करते हैं, जिस तरह के थॉट्स हमारे मन में आते हैं या जिस तरह की सिचुएशंस एनकाउंटर करते हैं, इस चीज का जो रिस्पॉन्स हमारे अंदर से आता है उसको हम लोग बोलते हैं इमोशंस. अब जैसे किसी ने हमें कुछ बुरे शब्द बोले तो डोंट वी फील सैड? सो दैट सॉर्ट ऑफ इमोशन कम्स. सिमिलरली अगर हमने अच्छा काम किया, किसी ने हमें उसके लिए अप्रिसिएट किया, तो वी फील वेरी हैप्पी. सो हैप्पीनेस आ गई, सैडनेस आ गई. किसी ने कोई मतलब हमारे साथ कुछ गलत कर दिया तो हमें गुस्सा आ गया, वो एंगर जैसे हमने बात की. तो कोई एकदम से कुछ अच्छा जिसको हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था वो चीज़ हमारे साथ अच्छी हो गई, तो एकदम से जो वाव मोमेंट है, वो जो उस तरह की फीलिंग है, वो भी एक हमारा इमोशन है. और हिंदी में अगर हम कहें तो बहुत सारे भाव होते हैं और मैं तो हमेशा मानता हूँ कि सारे भाव मिलकर के, सब इमोशंस मिलकर के ही इस दुनिया को एक बेहतर दुनिया बनाते हैं. जिस तरह के होली का त्यौहार हम मनाते हैं और डिफरेंट कलर्स मिलकर के एक अलग तरह का कलर बनता है और सब बड़े खुश होते हैं उसके अंदर. सिमिलरली जो हमारे डिफरेंट इमोशंस है, मतलब अगर एक ही तरह का इमोशन हमारे अंदर होगा तो भी गड़बड़ है. मतलब वी हैव गोट टू बी लिटिल केयरफुल अबाउट इट. तो एक सवाल उठता है कि भाई फिर इन इमोशंस को रेगुलेट कैसे करें. मतलब हम अगर अपने बच्चों के सामने इन चीज़ों को अगर रेगुलेट करेंगे, उनको समझाएंगे, उनके सामने मॉडल करेंगे. मैं हमेशा आप लोगों से ये बात कहता रहा हूँ कि वट एवर वी वॉन्ट आवर चिल्ड्रन टू डेवलप और बिकम लाइक, सो वी हैव टू एक्ट फॉर दैट. वी हैव टू बी द रोल मॉडल फॉर देम. इट्स नॉट ओनली द स्टोरी टेलिंग, इट्स नॉट ओनली दैट उनको भाषण देना, उससे नहीं होता है. ये हमें उनके सामने करना होता है. और जो आजकल कई सारी बातें बच्चों के बारे में कह दी जाती हैं बड़ी आसानी के साथ कि बच्चे बहुत जल्दी, बच्चे शॉर्ट टेम्पर्ड हो गए, बच्चे इस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, बच्चे शेयरिंग नहीं कर रहे, केयरिंग नहीं कर रहे, बड़ों का आदर नहीं कर रहे, या इस तरह की बातें कई बार कही जाती हैं. लेकिन मैं बताऊं ऐसा नहीं है. और इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं. ये कुछ दिन पहले की ही बात है. जिस स्कूल में मैं बच्चों के साथ रहता हूं तो उसमें एक 3 ब्लॉक हैं, प्राइमरी ब्लॉक, मिडिल ब्लॉक और सीनियर ब्लॉक. अब आप जानते हैं कि प्राइमरी ब्लॉक की जो भी सीनियर मोस्ट क्लास होगी, आफ्टर द एंड ऑफ ए पर्टिकुलर दैट सेशन व्हेन द चिल्ड्रन वर इन दैट हाईएस्ट क्लास, वो दूसरे ब्लॉक में शिफ्ट होते हैं.
तो मैं अभी जब बच्चों के से बात कर रहा था, राउंड पे था, तो बच्चे मिले, हमारा उनसे ग्रीटिंग्स हुई, हमने बात करनी शुरू की, और बच्चों ने कहा कि दे वर गोइंग टू विजिट द अदर ब्लॉक टू विच दे वुड बी गोइंग इन द नेक्स्ट सेशन। जो अगले क्लास में प्रमोट हो गए या हो जाएंगे तो वो दूसरे ब्लॉक में चले जाएंगे। लेकिन थोड़ी सी उन बच्चों के चेहरे पे इस बात की खुशी भी थी कि दे वुड बी मूविंग फ्रॉम वन ब्लॉक टू अनदर ब्लॉक, द न्यू ब्लॉक, बट एट द सेम टाइम मैनी ऑफ देम वर वेरी वेरी सैड ऑल्सो। तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया कि भाई आपको तो बड़ी अच्छा लग रहा होगा कि आप नई क्लास में जाएंगी, नए ब्लॉक में जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हमें बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, बिकॉज हमारे जो ये टीचर्स हैं जिनके साथ हमारा इतना ज़्यादा अच्छा बॉन्डिंग बन गई है, हम उनको बहुत प्यार करते हैं, वो हमें बहुत प्यार करते हैं, और अब हम उनको छोड़ना पड़ेगा। तो हम तो छोड़ना ही नहीं चाहते, और हम तो इसी ब्लॉक में रहे तो ज़्यादा अच्छा है। देखिए उन बच्चों का लगाव टुवर्ड्स देयर टीचर्स, बच्चों के मन में उनके प्रति प्यार, बच्चों के मन में उनके प्रति लगाव, बच्चों के मन में उनके प्रति रिस्पेक्ट है कि नहीं है। और हम कई बार कहते थे बच्चे, अगर रिस्पेक्ट नहीं होती तो उन बच्चों के मन में ये भाव आना ही नहीं था, ये इमोशन आने ही नहीं थे। बल्कि दो चार बच्चों ने तो ये भी कह दिया, वैसे तो मैं फेल होना नहीं चाहता, बट कई बार तो लगता है अगर मैं फेल हो जाऊं तो एटलीस्ट आई वुड रिमेन इन द सेम ब्लॉक विद द सेम टीचर्स। इतना लगाव बच्चों को अपने टीचर से। तो ये किसने किया होगा? उन टीचर्स ने किया होगा। इन बच्चों के साथ उनका जिस तरह का व्यवहार रहा होगा, इन बच्चों को जिस तरह का माहौल इन टीचर्स ने दिया होगा, ये उसी का असर है। तो अगर ये एक स्कूल के एक पर्टिकुलर ब्लॉक के टीचर्स ऐसा कर सकते हैं, तो क्या बाकी टीचर्स नहीं कर सकते? तो हम अगर इस बात पे आ जाएं, देखिए समाज में क्या हो रहा है, टेलीविजन पे क्या दिखाया जा रहा है, कौन किस तरह के वीडियो बना करके यूट्यूब पे डाल रहा है, उस बात को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, बिकॉज वो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारे कंट्रोल में क्या है? हम अपने बच्चों की देखभाल ठीक से कर लें, हम अपने बच्चों को वैल्यूज दें, हम अपने बच्चों को वो सब अपने आप करके दिखाएं, वो चीज़ हम पहले करें जो हम उन बच्चों से कराना चाहते हैं या उन बच्चों के अंदर डेवलप करना चाहते हैं। तो देखिए मैं आपको एज टीचर्स, एज एज पेरेंट्स, आपको कुछ बातें मैं बताना चाहता हूँ, आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो जो मैं हमेशा कहता हूँ, बी ए रोल मॉडल। तो अगर मैं बच्चों को एम्पैथी सिखाना चाहता हूँ तो मुझे खुद को वो एग्जीक्यूट करनी पड़ेंगी एट प्लेस। तो अगर मैं पेरेंट के रूप में हूँ तो घर में मैं उस तरह की बात करूँ कि घर में किसी को भी कोई तकलीफ होती है, चाहे मेरे बड़ों को हो, मेरे छोटों को तकलीफ हो, मुझे ऐसा लगना चाहिए कि जैसे ये मेरी तकलीफ है। एंड इफ आई वुड एक्सप्रेस इट इन सच ए वे इन फ्रंट ऑफ आवर चिल्ड्रन एट होम एंड द टीचर्स इन द स्कूल। देखिए अगर किसी बच्चे को क्लास में कोई तकलीफ होती है या बस में कोई तकलीफ होती है और एक टीचर इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं कि जैसे कि भाई जैसे वो उनको बहुत दर्द हुआ है, एक बच्चे को बैठने में तकलीफ हो रही है एक सीट के ऊपर, और टीचर को खुद को लग रहा है कि नहीं मैं यहाँ पे कैसे बैठ पाऊंगा, इफ द सीट इज लाइक दिस हाउ वुड आई सिट। एंड हम बच्चे के साथ इस तरह से रिलेट करते हैं, एम्पैथाइज करते हैं, बच्चा सीख जाएगा कि देखिए, और रिस्पेक्ट जो मैंने कहा, योर रिलेशन विद द चाइल्ड वुड इम्प्रूव लाइक एनीथिंग। इमोशनल अवेयरनेस की बात हमें अपने बच्चों को ये बात करनी पड़ेगी कि बेटा गुस्सा आना ठीक नहीं है, और बहुत ज़्यादा गुस्सा आना तो बिल्कुल ठीक नहीं है। अब अगर आ गया है, आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी है, ख़राब लगी है, तो उसके लिए बच्चों को मतलब लेक्चर देने के बजाय हमें अपने गुस्से पे कंट्रोल करना पड़ेगा, हमें अपनी फीलिंग्स के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। ये नहीं कि जब खुश हुए तो मतलब सब कुछ गड़बड़ भी हो रहा है तो उसको भी भूल गए, और नाराज हुए तो बहुत कुछ अच्छा हो रहा है हमें वो भी नहीं दिखता। इस तरह की चीज़ों को हमें संभालना पड़ेगा। पहले अपने इमोशंस को रेगुलेट करना पड़ेगा। जब हम अपने इमोशंस को, चाहे एंगर हो, सैडनेस हो, हैप्पीनेस हो, या एकदम से डिस्गस्टिंग फीलिंग आ जाती है, अरे ये क्या हुआ, वी हैव टू इंश्योर वी हैव टू नो आवरसेल्व्स, आवर इमोशंस, एंड देन रेगुलेट देम। एंड इफ द चिल्ड्रन वुड वॉच अस डूइंग दैट, तो वो ऑटोमेटिकली सीख जाएंगे, उनको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। उसके बाद में एंकरेज पर्सपेक्टिव टेकिंग। अब ना ये क्या है, अब इसमें बड़ी अच्छी बात होती है कि आपने कोई स्टोरी बताई बच्चे को, या कोई कहानी बच्चों ने पढ़ी, अब उसमें कोई कैरेक्टर है, अब उस कैरेक्टर के बारे में बच्चे से बात करो कि व्हाट डू यू थिंक दैट कैरेक्टर हैड डन दिस 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 इन दिस सिचुएशन, इफ यू वर लाइक, डू यू एग्री विद, और यू वुड हैव डन इट डिफरेंटली। तो इस तरह से जो आप दूसरे का पर्सपेक्टिव को भी जानेंगे कि अगर किसी कारणवश कोई मेरे से थोड़ा नाराज हुआ, सो व्हाट मे बी द पॉसिबल रीजन, थोड़ा पर्सपेक्टिव समझने की भी हमें कोशिश करनी पड़ेगी। तो बच्चों को एंकरेज करें पर्सपेक्टिव टेकिंग के लिए, और बच्चों को आप देखिए कि उनकी जो फीलिंग्स होती हैं उसको थोड़ा वैलिडेट भी करें।
हर बात पे टोकना उन बच्चों को, हर बात पे ये ठीक नहीं किया, ये क्यों किया, ये तो सही नहीं है, आप बच्चे हो, ऐसा नहीं करें। बच्चों की फीलिंग्स को भी वैलिडेट करें। उनको कुछ आपको बताने का मन है और वो आपको कोई अच्छी बात बता रहे हैं, आप उनको जरा पैराफ्रेज करो ना उनकी सेंटेंसेस को। हाँ अच्छा, आप ऐसा कहना चाह रहे हो बेटा, या बच्चे आपने तो ये बड़ा अच्छा किया, तो वैलिडेट देयर फीलिंग्स। दूसरा, एक्सपोज देम टू डाइवर्सिटी, डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यूज, डिफरेंट सिचुएशंस बच्चों के सामने रखिए। तो अगर हमारे बच्चों को हम एक्सपोज करेंगे, और देखिए मैं आई नीड नॉट नेसेसरली टू एग्री विद समबडी एल्स सेइंग, लेकिन मैं दूसरे को बिल्कुल रिडिक्यूल कर दूं, बिल्कुल उसको अलग ही कर दूं, उसके विचारों पे ध्यान ही ना दूं, ऐसा नहीं होता है। In this world there is no singularity, there is a lot of diversity, and we have to appreciate, encourage and respect this diversity. ये कब होगा? जब हम अपने बच्चों को उससे एक्सपोज करेंगे। बच्चों के अंदर हम काइंडनेस एंकरेज करें, काइंडनेस एंकरेज होगी तो एम्पैथी ऑटोमेटिकली बच्चों के अंदर आने लगी। इफ आई वुड बी काइंड टू समबडी एल्स, देन आई एम डेवलपिंग एम्पैथी इन दैट सो इजीली। एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि हम एक्टिव लिसनिंग करें। जब बच्चे हमसे बात करना चाह रहे हों, उस वक्त हम उनकी बात सुने। ऐसा नहीं है मैं अपने काम में लगा हुआ हूँ, बच्चे बोले जा रहे हैं और मुझे ध्यान ही नहीं बच्चा क्या बोल रहा है। ना ना ना, व्हेन आई एम लिसनिंग, आई एम 100% विद चाइल्ड। तो जब हम एक्टिव लिसनिंग करेंगे तो बच्चे के अंदर एम्पैथी वेरी इजीली डेवलप होएगी। तो वो भी जब बच्चा कल उसको कोई अपनी बात बताएगा तो वो बच्चा भी उस बात को उतने ही ध्यान से सुनेगा। जो लास्ट चीज मैं आपको कहना चाहता हूं, ये हमेशा अपने लिए भी और बच्चों के लिए भी लागू होती है। सेट एक्सपेक्टेशंस फॉर द बिहेवियर। हमारी ये आपसे एक्सपेक्टेशंस है, बट उन एक्सपेक्टेशंस पे पहले हमें खरा उतरना पड़ेगा। आई वॉन्ट माई चिल्ड्रन टू गेट अप ऑन टाइम एंड आई डोंट गेट अप ऑन टाइम, आई कांट रियली मेक देम। वो नहीं हो सकता है कि आपके फियर की वजह से, आप बड़े हो, आपकी डांट की वजह से वो बच्चा वो कर ले, लेकिन वो एम्पैथी डेवलप नहीं, उसके अंदर थोड़ी नाराजगी रहेगी हमेशा इस बात के लिए कि देखिए खुद तो नहीं करते। या जैसे मैं खाने की बात करता हूँ, फूड हैबिट्स हैं हमारी, सो फूड हैबिट्स पे भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। पंचुअलिटी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो इन भाई आपको टाइम से जगना है, टाइम से सोना है, हेल्दी खाना खाना है, वक्त पे पढ़ाई करनी है, खुश रहना है, खेलना है। अपना काम जब कर रहे हो सिंसियरली करना, 100%। जो मैंने आपको बात कही, एक्टिव लिसनिंग मतलब एक्टिवली इन्वॉल्व इन एनीथिंग व्हाट एवर यू आर डूइंग, नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट। ये बात आपको, सेट एक्सपेक्टेशंस फॉर योर बिहेवियर, सेट एक्सपेक्टेशंस फॉर द बिहेवियर ऑफ द चिल्ड्रन। अब देखिए मैं एक स्कूल की बात करता हूं, मैं कोई फिक्टिशियस नंबर ले लेता हूं। कोई स्कूल है जिसमें 1000 बच्चे हैं। 1000 बच्चे हैं तो 50 तो कम से कम टीचर्स भी होंगे, और 50 टीचर स्कूल में ऐसा ही करते हैं। और 10 मैंने फैमिली मेंबर बताए आपको एक बच्चे के, चलिए मैं 5 ले लेता हूं, 10 भी छोड़ देता हूं, 5 ले लेता हूं एवरेज नंबर। 5 बच्चे फैमिली मेंबर्स बच्चे के, एक बच्चा 6, और 1000 टोटल बच्चे। टोटल कितना हो जाए? 6 मल्टीप्लाइड बाई 1000, 6000 adults including 1000 children would get benefited by becoming more empathetic and regulating emotions together. और उधर कितने टीचर्स? 50 टीचर्स भी आपके उस स्कूल के जुड़ गए, तो 6050 people will get benefited by that. और अगर हम इतने जो नंबर ऑफ स्कूल्स इंडिया में काउंट करें या अक्रॉस वर्ल्ड करें, तो बताइए कि किस तरह पूरा समाज चेंज हो जाएगा। पूरी मतलब what I started with was making our children empathetic and regulate their emotions properly. लेकिन मुझे तो आते आते आपसे बात करते करते मैं यहां पहुंच गया कि बच्चे ही नहीं एम्पैथेटिक होंगे, वही नहीं रेगुलेट, हम पूरा समाज है रेगुलेट। तो आपको फिर ना मीडिया को दोष देने की जरूरत पड़ेगी, ना सरकारों को दोष देने की जरूरत पड़ेगी, ना किसी को। एंड हम सब लोग इस समाज को एक इतना सभ्य समाज, इतना सुसंस्कृत समाज बना पाएंगे कि मतलब बस मैं तो सोच के थ्रिल्ड हो रहा हूं। सो इफ वी ऑल, एंड दिस इज हु हैज स्टार्टेड, एन इंडिविजुअल टीचर, एन इंडिविजुअल पेरेंट, एन इंडिविजुअल फैमिली मेंबर, दादा दादी, नाना नानी, हुएवर इज अराउंड, इधर स्कूल के अंदर टीचर्स। अगर हम सब ने इतना कर लिया तो फिर थोड़े बहुत नेगेटिव्स में भी लेंगे ना बच्चों को इधर उधर, उनका कोई ज्यादा असर बच्चों के ऊपर होगा नहीं। दे वुड बी एबल टू रियली मैनेज इट सो वेल बिकॉज वी हैव ऑलरेडी टॉट देम रेगुलेटिंग द emotions. I hope whatever I have tried to discuss with all of you would make some difference in your thinking towards children and help them become empathetic and
regulate their emotions, and in the process, you learn that. So thank you very much, and let's meet in the next episode on some other important topic. Thank you very much. God bless us all.